Okay. So, shall we start? So, do you want to ask anything or any doubt that you have? Mm-hmm. Mm-hmm. Wait a minute. So, what we'll do, we'll try to discuss the breaks here with this fixed income processing part with regards to the fixed income processing part. Okay. See, so breaks that you can expect in a two ways. One, before processing the payment, cash payment to the investors, and another one is after processing the cash payment. So you can say prepayment and post payment. Break resolution or risk resolution, you can call it. See, first of all, try to understand the database. Database, it means for a particular corporate actions, what we required, right? What we required to set up a corporate actions or to process a corporate actions, right? So database that we have a fixed it. What are the fixed data points? Quantity, correct? Price and amount, transaction amount or transaction currency, correct? In a prepayment stage, let's say that a particular trade booked with booked with incorrect quantity. In that case, also you can see the break, right? If trade booked with incorrect price, then quantity, right? Then trade date, then settlement date also, right? For a fixed income processing, if you see the trades booked with incorrect price, quantity, trade date, and settlement date, in that case you can expect a break on that particular corporate action. And if you get a break, then what? So break, it means what happened exactly? I'll tell you. So that particular trades transactions, see in a system, you would have seen that. So most of the companies, they have a payment platforms where so they accept the payment, or I would say they maintain their cash book like IntelliMatch, right? Like enterprise applications, like they have other TLM and all, right? So where you can accept all the payment transactions, right, for a different financial instruments and all. If we booked, if we booked anything incorrectly, so it means see. So main motto is to match ledger versus statement, debit versus credit, payer versus receiver, internal versus external, right? Buyer versus seller. These are like two-way recon that we do perform, or even against one way you can see one account against you can see multiple account as well. But at least for a break resolution, you should have a two legs. This is your one leg, and this is your another leg. That's how you can means match. Let's say your statement is ledger is 10,
then statement also should be 10, and then you can match it. Let हाँ, तो ये जो प्री पेमेंट का जो रिकॉन होता है उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, पॉइंट इज, क्योंकि यहां पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है, यहां पे जो तुम्हारा ट्रेड जो सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ है वो सही होना चाहिए, इसी के रिगार्ड्स ब्रेक आता है ये। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होता। रिकॉन एक सेपरेट, कभी कभार ना रिकॉन की एक सेपरेट टीम भी सेटअप होती है, या फिर ये हमें भी करना होता है, वो डिपेंड करेगा एंड टू एंड बिजनेस मॉडल वहां पे क्या रन हो रहा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक मतलब क्या दिखाई देता है कि देखो कि जो सिस्टम होता है ना हमारा, हर जगह पर दो तरह से रिकॉर्ड होता है, हर एक डेटाबेस पॉइंट को दो दो अलग या फिर तीन तीन अलग टीम्स अपने पास भी रिकॉर्ड कैरी करती है, बिकॉज दिस इज द फाइनेंस बिजनेस, इट मींस इट्स वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल एक्टिविटी आई वुड से। जो तुम डेटा रेफर करते हो दूसरी भी टीम सेम डेटा रेफर करती है, इसलिए वो हमारे पास उठा के आती है कि भाई देखो हमारे सिस्टम में ये अलग दिख रहा है, तुम्हारे सिस्टम में तो क्वांटिटी कुछ गड़बड़ दिख रही है, इसकी वजह से जो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट, सो वॉट एवर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग वो गलत दिख रहा है। अभी ऐसे टाइप के ब्रेक तुम्हें कहां पे देखने को मिलेंगे, जहां पर तुम इन सब की जो कस्टोडी सर्विस देते हो ना वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि हेज फंड टीम्स, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल इन्वेस्टिंग का जो ब्रोकर का सेगमेंट्स वगैरह है, ये लोग दे रीच आउट टू अस, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई कि हमारे सिस्टम में, क्योंकि अगर कोई ब्रोकर का या फिर एचएफ का सिस्टम है, इसमें से कोई भी एक चीज उठा लो, जैसे कि मानो ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, ये एचएफ इस साइड है, म्यूचुअल फंड्स है, ब्रोकर्स है, ये इस साइड है जिनका स्टेटमेंट रहेगा खुद का, और जो दूसरों की तरफ से आ रहा है या तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, लेजर होगा पेयर, मतलब दोनों में से एक साइड होगी, है ना, तो ये मानो कस्टडी कर रहा है। जब कस्टोडियन करेगा तो मिडिल ऑफिस मतलब मिडिल मन का ही रोल करेगा, है ना। हाँ, सो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तुम्हारे सिस्टम में ऊपर का रिकॉर्ड दिख रहा है, चलो तुम हेज फंड के साथ काम कर रहे हो, वहां पे तुम रिकॉन कर रहे हो, तुम रिकॉन इस चीज का कर रहे हो कि भाई हमें इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, रिकॉन के दौरान तुम्हें पता चला, क्योंकि हमें तो दोनों अकाउंट के एक्सेस दिया जाता है, या फिर वो अपना रिपोर्ट, कई कई बार ऐसे होता है कि अपनी रिस्क ज्यादा ना हो, इसलिए उनकी यानी कि कस्टोडियन साइड की जो टीम होती है वो उनको रिपोर्ट भेज देती है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे हमारे सिस्टम में आपके अकाउंट में जो पोजीशंस पड़ी है वो इतनी दिख रही है, तो आप देखो क्या करना है। फिर हम रिकॉर्ड पे बैठे हमारे फंड के साथ कि वह देखने के बाद पता चला कि हमारे इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है, हमारे स्टेटमेंट में तो चलो मानो कि 10 दिख रहा है लेकिन उनके यहां पे 8 दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, फिर मैच नहीं होगा, अनमैच रह जाएगा, पेंडिंग रह जाएगा, तो फिर यहां पे गड़बड़ होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, उस चीज का जो शॉर्ट हमें दिख रहा है टू, हम देखते कि देखो हमारे पास ये दिख रहा है, तुम्हारे पास ये दिख रहा है, तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम्हारा सिस्टम अपडेट ना किया हो या फिर बंदा भूल गया हो, तो तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, ये सब बोलने के लिए ऐसे ही नहीं जा सकते, यू शुड हैव अ बैकअप source which can define that yes we are right, our positions are right, our whatever information that we have booked in our system that is correct, so we should have that, so it means we need a backup। अभी बैकअप के लिए क्या हो सकता है, अभी तुम्हारे पास बैकअप दो ही तरह से आ सकता है, एक कि जो तुमने ओरिजिनल ट्रेड बुक किया था उसका कुछ ना कुछ होगा ना, तुमने जो ब्रोकर या फिर मिडलमैन को भेजा होगा कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन, हाँ उसको ट्रेड इनवॉइस भी कहते हैं, या फिर ट्रेड इनवॉइस कहो, ट्रांचे कहो, अग्रीमेंट कहो, कॉन्ट्रैक्ट नोट कहो, जो कहना है कहो। हाँ, तो ये तुम अपना अटैच करके एक मेल ड्राफ्ट करके उनको बोल सकते हो कि भाई देखो कि ये ऐसा है, ये उनकी तरफ से भी आते हैं, ये उनकी तरफ से भी आते हैं कि अगर उनके सिस्टम में कुछ दिख रहा है तो अपनी तरफ से भी जाते हैं। अल्टीमेट गोल इज देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिपेंसी ऑन एनी ऑफ द ट्रेड अकाउंट, because this is a client money,
ब्रेक रेजोल्यूशन, हाँ, एंड जब भी ब्रेक रिजॉल्व करना है, जब भी करना है, तो ये हर एक कहीं पे भी आप काम करो, ब्रेक रेजोल्यूशन इज वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क आई वुड से, जहां पर आपको जो आपका अप्रोच वो होना चाहिए कि पहला तो है कि इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द बेसिक्स, फाइंड आउट द सोर्स और बैकअप, ये दो चीजें अगर तुम कर पाए, अभी ये होगा कैसे, आप एंड तक जाओ ट्रांजैक्शन की, कि देखो कि अपना सिस्टम हमें जो डेटा आता है वो कहां से आता है, मुझे कौन फाइल भेजता है, उसको कौन फाइल भेजता है, मेरे सिस्टम में यह है तो उसके सिस्टम में वो, तो उसका लॉजिक क्या क्या हो सकता है, मतलब सिचुएशंस क्या क्या बन रही है, हो सकता है कि अपन गलत हो सकता है कि वो गलत हो। इन्वेस्टिगेशन में यह पता करना है कि अगर ये मेरे सिस्टम में किसी ने ट्रेड ट्रेड बुकिंग टीम ने, पहले तो तुम कस्टोडियन के पास जा नहीं सकते, अगर तुम इनकम प्रोसेसिंग में काम कर रहे हो तो तुम क्या करोगे फिर, भाई तुम्हारा काम यह है कि भाई ट्रेड प्रोसेसिंग किसने की वो देखो, राइट। इन्वेस्टिगेशन में मुझे यही पता करना है, लेट्स से मैंने किया ट्रेड प्रोसेस, भाई मुझे मेल डालो, हे लिसन, यू हैव प्रोसेस दिस ट्रेड्स, कैन यू प्लीज प्रोवाइड बैकअप टू अस। वो ढूंढेगा, देखेगा, बैकअप नहीं मिलेगा, अगर गलत उसने टाइपो एरर है, या फिर कुछ मेल भी लाया था वो भूल गया, या फिर ऐसे कुछ गलत प्रोसेस कर दिया, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बनेंगे, तो वो बैकअप नहीं देगा, बोलेगा अपोलोजाइज कि भाई ऐसे लग रहा है कि ये इनकरेक्टली बुक हुआ है। उसको पूछो कि व्हाई डिड यू बुक इट देन, वो बताएगा सब स्टोरी की, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मतलब तुम्हें क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन किया, रीच आउट किया, देन उसके बाद तुम्हें बैकअप खुद में खुद मिल गया, कि भाई बैकअप मतलब उसका कम्युनिकेशन है कि ये इनकरेक्टली बुक हुआ है, तब जाके तुम उसको बोल सकते हो लिसन, ये अपने सिस्टम में ठीक है, बट ये कस्टोडियन साइट में भी गलत पोजीशंस दिख रहा है, तो उनको भेज दो, उनको कहो कि मैच करने के लिए अपने इंस्ट्रक्शंस, तब जाके जो पेमेंट आने वाला इंटरेस्ट पेमेंट का, वो एजेंट बैंक को नोटिस जाएगा, एंड एजेंट बैंक करेक्टली पेमेंट देगा, नहीं तो इट विल इंपैक्ट my interest payment on a payment date। ठीक है, तो यही, हाँ, तो हमें सबसे बड़ा मतलब ये टास्क यहां पे यही होता है कि भाई जब ब्रेक्स दिखते हैं तो हम आधे में ही लग जाते हैं कि मैं क्या देखूं पहले क्या देखूं, ऐसे नहीं करना है। ब्रेक जब भी आता है उसका पहला जो स्टेप होना चाहिए, डू द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब यही है कि उसके पूरी बेसिक्स ऐसी चीजें देखो कि भाई ये कहां से, पहले तो ये देखो कि ये सोर्स इसका क्या है, कहां से आता है, किस बेसिस पे हमने बुक किया, किस बेसिस पे किस टीम ने एक्शन किया होगा, ये पूरी पॉसिबिलिटीज बनाओ अपने पास, एंड देन मेल शूट करो। तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन अब क्या कह रहा है, कि तुम्हारा ये कह रहा है कि देखो कस्टोडियन साइड मेरा इतना पोजीशंस दिख रहा है, यहाँ पे इतना दिख रहा है, अगर ऐसे होगा तो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट इतने अमाउंट से इंपैक्ट हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ है, लेकिन ये तुम्हारे एंड से लग रहा है कि तुम्हारे सिस्टम में कुछ किया। कई बार अपने इंटरनल टीम से बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, 90% केसेस में अपने ही टीम गड़बड़ी कर देते हैं, 20% केस में एक्सटर्नल गड़बड़ी कर देता है, वो है कस्टोडियन। वहां पे भी लोग ही बैठे हुए, तो उनके यहां से भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं। हाँ, क्योंकि पूरा सिस्टमैटिक वे से डेटा प्रोसेस होता है, पूरा सिस्टमैटिक वे से आता है, उनका भी क्यूसी होता है, क्वालिटी होता है, चेक होता है, तो वो भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी गलती नहीं होती है, गलती उनकी भी हो सकती है, लेकिन उनका बहुत जो चांसेस है पूरा अप टू 20% दैट यू कैन से, एंड द रेस्ट 80% तुम्हारी कहीं ना कहीं टीम होगी जो इन्वॉल्व है उसमें, कि जिसने ये गलती करी है। सो ब्रेक रेजोल्यूशन, यस प्लीज। हाँ, तो ये ब्रेक रेजोल्यूशन का पहला फंडा जो मैंने कहा कि तुम्हारा फाइंड आउट, अभी बैकअप मिला, बैकअप मिलने के बाद क्या होगा, दो चीजें होगी, एक होगा तुम उसको रिपोर्ट करो, डू रिपोर्ट फॉर व्हाट, टू गेट द कॉन्फर्मेशन, कि मैं, अभी ये कौन दे सकता है, देखो तुम्हारे कई बार हम जब थर्ड पार्टी पे काम करते तो जो तुम्हारा कैप्टिव में बैठा बंदा है तुम्हारी फर्म का, वो अप्रूवल दे देगा, है ना, या फिर कोई और क्लाइंट होता है, हम क्लाइंट क्लाइंट करके चिल्लाते, तो वो होगा कि बोलेगा हमें ये एक्सप्लेन करना है कि देखो ये हमारे टीम से ऐसे ऐसे हुआ, वैसे वैसे हुआ, उन्होंने ये कर दिया, तो हम ये इंटरेस्ट चेंज करने जा रहे हैं, हम ये चेंज करने जा रहे हैं, अमाउंट चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि बैकअप है वगैरह। सो मतलब यही हुआ कि डू रिपोर्ट,
गेट कॉन्फर्मेशन, एंड अगर कॉन्फर्मेशन आया कि चलो ठीक है, मान लिया कि जो सोर्सेस वगैरह वैलिड है, सब चीजें वैलिड है, तो अब क्या करो, अपने सिस्टम को एडजस्ट करो। मतलब ये क्या हुआ, एक्शन हुआ ना, ये एक्शन हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपने सिस्टम को, क्योंकि वहां का सिस्टम उनका सही है, हमारे बंदे ने गलती कर दी थी, हम अपने सिस्टम को सही करेंगे, हमारा ब्रेक वहां पे निकल जाएगा, मैच हो जाएगा, जो हमारी इंटरेस्ट अमाउंट है करेक्टली प्रोजेक्ट होगी, जब पेमेंट आएगा तो एग्जैक्टली पेमेंट मुझे मिल जाएगा, जो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा ब्रेक मैच होगा, सब मैच हो जाएगा। ये अगर तुम फंड लेवल पे कर रहे हो तो ये सिचुएशन बन रही है, एंड अगर तुम कस्टोडियन लेवल पे काम करोगे तो तुम्हारे पास ऐसे कई सारे फंड्स आएंगे, कई सारे फंड्स के टीम्स तुम्हें क्वेरी करेंगे, इन्वेस्टर के टीम्स क्वेरी करेंगे, जहां पर, क्योंकि अगर तुमने एक अकाउंट को मानो कि ये अलग अलग अकाउंट्स है, तुमने एक अकाउंट को गलत कर दिया, मतलब दूसरे पे ज्यादा गया है ना, तो मतलब वो दोनों लोग आएंगे तुम्हारे पास। वेट अ मिनट राइट, तो यहां पे सिचुएशंस अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से काम करेगी। तुम कहां पे जॉब कर रहे हो उसके हिसाब से डिफाइन होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां पे हूं, वेर आई एम, इफ आई एम विद HF, तो मैं सिर्फ उस जिस फंड की मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए मैं ब्रेक का रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसी रिगार्ड से मैं चीज कर रहा हूं। इफ आई एम वर्किंग विद कस्टोडियन, सो डेफिनेटली यू कैन सी मोर एंड मोर अकाउंट्स विल बी अंडर विद दैट पर्टिकुलर कस्टोडियन, तो वहां पे ज्यादा क्वेरीज तुम्हें अलग अलग फंड्स के दिखाई देंगे। ठीक है, वहां पे गलती करना मतलब ये होता है कि तुमने एक का दूसरे को दे दिया, दूसरे का तीसरे को दे दिया, तो इसलिए उनके ब्रेक्स जल्दी से रिजॉल्व ही नहीं होते हैं। फंड लेवल पे फिर भी मान लेता हूं मैं, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुमने एक इंडिविजुअल फंड का ही ट्रेड ऐड कर दिया था, कम ज्यादा क्वांटिटी में घपला कर दिया था, तो वो इंडिविजुअली लेवल पे तुम इमीडिएटली रिकॉन भी हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये बनती है, एंड यहां पर अगर एक्शन हो रहा है मतलब यू कैन सी दैट यस वी हैव एडजस्टेड, अमेंडेड, and now we are confirming it to you, so we are fine with this particular trade and whatever interest payment is there। ये हो रहा है तुम्हारा प्री पेमेंट स्टेज में, जितने भी ब्रेक्स रहेंगे उसकी बात हो रही है। अभी इसमें क्या क्या हो सकता है, ब्रेक्स के टाइप्स अगर तुम देखा जाए, देखो मैं मानता हूं कि सिर्फ इस दुनिया में दो ही तरह के ब्रेक्स एग्जिस्ट रहेंगे, वो है कैश ब्रेक, दूसरा है स्टॉक ब्रेक। बट अलग अलग कंपनियां कैश ब्रेक में भी बहुत सारा उनका बाइफर्फिकेशन आया है, तो जैसे कि यहां पर भी कहते कि एजेंट स्टॉक हुआ, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल अकाउंट ब्रेक हुआ, कोई बोलेगा इंटरनल ब्रेक, एक्सटर्नल ब्रेक, कई तरह के नाम्स दिखाई देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, बट हमारे लिए सीखने के लिए यही है कि दो ही ब्रेक्स के टाइप्स दिखेंगे, एक होगा कैश ब्रेक, दूसरा होगा स्टॉक ब्रेक। यहाँ पे भी जैसे ब्रेक्स दिखाई देंगे तुम्हें, सस्पेंस होगा, सस्पेंस ब्रेक भी हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है, तो वो अब नहीं मैं डिस्कस करूंगा, वो कॉर्पोरेट एक्शंस में डिस्कस करूंगा, यहां पर इतना ही याद रखो कि वो सस्पेंस है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे एंटिटीज है, उनको एक अकाउंट ओपन करना होता है, अगर उनको मानो कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गई, पैसे एक्स्ट्रा आ गए, तो वो क्या करते हैं कि वो सस्पेंस अकाउंट को डाल देते। क्यों डाल देते? क्योंकि वो एक बैंकिंग में नियम है, उसको लॉ कहेंगे कि एक का पैसा दूसरों को भी ना दे सकते हैं हम लोग, मतलब किसी का पैसा किसी को नहीं दे सकते ऐसे। अगर ज्यादा है
तो जो लीगल सस्पेंस अकाउंट जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसको हम पार्क करके रख सकते हैं, एंड जब उसका कोई हमें नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो उसी से निकाल के दे देंगे, हाँ भाई देखो तुम्हारा पैसा हमने यहां रखा था, अब ले लो। जैसे मानो इंटरेस्ट रेट हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें जो आना चाहिए वो है 10 रुपए, कंपनी ने प्रोसेस कर दिया, गलती से हुआ कस्टोडियन से, वो आया 12 रुपए। देखो तुम्हारे सिस्टम में जो स्टेटमेंट क्रिएट है वो है 10 से, तुम्हें जो आया हुआ है वो है 12 रुपए से, मतलब जो तुम्हारे पास लेजर आएगा उसको तुम मैच ही नहीं कर सकते, बट पेमेंट डेट को तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना चाहिए ना, बट तो तुम क्या करोगे, जो लेजर आया उसको सिर्फ 10 रुपए का ही उसमें से पेमेंट निकाल लोगे, फोर्स मैच करोगे, 10 रुपए ही प्रोसेस करोगे, जो 2 रुपए बच रहे उसको सस्पेंस में डाल दो एंड उसका इन्वेस्टिगेशन चलने दो। अगर तुम्हें कोई आ भी गया और पूछा कि भाई 2 रुपए क्यों रखे यहां पे, बोलो कि भाई इसके ऊपर कम्युनिकेशन चल रहा है, we have sent mail to the custodian so they are investigating from there, once they confirm yes वो ज्यादा आया तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट से ही रिवर्स कर देंगे। अब ये क्यों बनाया गया उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इसमें भी बनेगा अगर इंटरव्यू क्रैक करना ही है तो, कि भाई सस्पेंस अकाउंट क्यों, वो अगर 12 रुपए आया तो 12 रुपए पे कर दो ना डायरेक्टली, भाई ऐसे कैसे पे कर दे, अगर कल हमने जिसको पेमेंट दे दिया, ये हूं मैं, समझो आपने मुझे 12 रुपए पे कर दिया, आपको 12 आया था, मुझे 10 देना था, 10 की जगह आपने 12 कर दिया, एंड ये 12 मैंने, चलो 12 करोड़ की बात हो रही है, 12 करोड़ की बात हो रही है, 2 करोड़ आपने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया। अब बताओ, आपने जैसे ही पेमेंट दे दिया फिर आपके पास कम्युनिकेशन आया कि आपको हमने ज्यादा पेमेंट प्रोसेस कर दिया है, आपको अभी अकाउंट एडजस्ट करना होगा, आपका जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो आपको रिसीव्ड हुआ है दैट यू नीड टू रिवर्स टू अस ऑन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। पर आपके केस में तो आपने मुझे दे दिया है, अब क्या करोगे? ट्रस्ट मी, ऐसा पैसा वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारे हाथ से अगर पैसा जाता है तो पैसा इजीली रिटर्न नहीं होता है, उसके चार्जेस होते हैं, कन्वीनियंस फी होता है, ट्रांजैक्शन फी होता है, उसके बाद पेनल्टी होता है कि आपने क्यों प्रोसेस कर दिया एक्स्ट्रा, एंड बियॉन्ड दैट इफ आई एम डिनाइंग टू रीपे द पेमेंट, देन ट्रस्ट मी वो पूरा का पूरा पैसा आपके जो भी जिस बैंक के साथ आप काम करते हो उसको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, while reconciling the payments, while confirming the payments, while processing the payment, you should ensure that you are checking everything. Everything means everything. एक बार पेमेंट चला गया बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये जिस भी जहां पर भी पेमेंट टीम में आप काम करोगे उसमें यही लॉजिक अप्लाई होता है। हाँ, अगर वो सिस्टम तुम्हारा लाइव नहीं है, बस तुम एक अपना, होता है ना कि 2 तरह के सिस्टम्स पे हम काम करते, एक होता है शैडो अकाउंटिंग बोलते हैं मुझे, तो शैडोइंग करते हैं बस, और दूसरा होता है कि जहां पर कैशियर की तरह एक्चुअली प्रोसेस कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रोसेसिंग के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। कस्टोडियन लेवल पे तो हम प्रोसेस ही करते हैं, है ना। अगर कोई ब्रोकर या फिर एजेंट बैंक है तो वहां पे भी हम प्रोसेस का ही काम करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो वहां पे अगर आप काम करोगे, ये अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो वहां पे बहुत विजिलेंटली काम करना पड़ेगा। अगर ये तुमने हेज फंड लेवल पे काम कर रहे हो एंड अकाउंट में आपके पास जैसे 10 हेज फंड है, अलग अलग सब हेज फंड्स होते हैं, एक डील दूसरे के अंदर आपने बुक भी कर दी, एंड वो अगर इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने गलत फंड में रिकॉर्ड कर दिया, तो कॉन्फर्मेशन लेके आप आपके फंड मैनेजर्स का, डील मैनेजर्स का, उसको हटा के दूसरे जो एक्चुअली उसमें आप ऐड कर सकते हो, है ना। हाँ, क्योंकि यहां पे हम किसी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, अगर क्रेडिट भी करें तो कई बार इंटरनली ऐसे होता है तो हम यही वे फॉलो करते हैं, बट अगर प्रोसेसिंग के यहाँ पे थोड़ी सी हमें केयरफुली डील करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रेक रेजोल्यूशन का प्री स्टेज में यही बन रहा है, इतने ही ब्रेक्स है यहाँ पर। टैक्स ब्रेक का ये क्या बोलते हैं उसे, करेंसी ब्रेक, वो एफएक्स कहा जाता है उसको, एफएक्स मतलब क्रॉस करेंसी में अगर पेमेंट आ रहा है, जैसे जीबीपी में हमें आना चाहिए, हमें यूएसडी में आ गया, तो वो भी ब्रेक क्रिएट करेगा, तो उसका जो दोनों का कन्वर्जन होगा तो वो 0 होना चाहिए। 0 का मतलब है कि भाई
जितना जीबीपी आए उतनी वैल्यू की यूएसडी होनी चाहिए, जितने वैल्यू की यूएसडी उतनी वैल्यू की जीबीपी होनी चाहिए। अगर उसमें का डिफरेंस कुछ ऐसे निकल रहा है तो वो टॉलरेंस है, उस टॉलरेंस की भी एक लिमिट होती है ना। वो लिमिट कितनी होती है वो कोई डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो हर एक ब्रोकर की अपने कंपनी की अपने अपने हिसाब से अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग रखते हैं कि मुझे कितना बेयर करना है। कोई बोलेगा $5, कोई बोलेगा $50, कोई बोलेगा 10 जीबीपी, कोई बोलेगा 100 जीबीपी, वो अपने ऊपर है। बट ये टॉलरेंस भी होता है, तो उस ब्रेक में तुम्हें दिखाई देगा। यहां पर जैसे मैंने राइट ऑफ की बात करी, अगर तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट जो आने वाला है सिर्फ वो $1 है, सिर्फ $1 है, पेमेंट डेट को तुम्हें प्रोसेस कर सकते हो, उसका तुम पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस की वेट करने की जरूरत नहीं है। एंड उसका तुम राइट ऑफ पोस्ट करके जो स्टेटमेंट तुम्हारा जो रहेगा या फिर लेजर रहेगा वहां बैलेंस क्रिएट करके आप उसको मैच भी कर सकते हो। अब ये राइट ऑफ क्यों बीच में आया? द पॉइंट इज कि अगर हर एक कंपनी अपनी लिमिट सेट करती है कि अगर किसी कॉर्पोरेट एक्शन की या फिर इनकम प्रोसेसिंग इवेंट की वैल्यू $2 है, $3 है, तो उस केस में तुम्हें यू डोंट नीड टू वेट फॉर अ पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टली यू कैन प्रोसेस द पेमेंट, दैट्स इट। हाँ, तो तुम उसको कर दो, अपने सस्पेंस अकाउंट से पैसा उठा लो और मैच कर दो उसको, मतलब राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ अकाउंट ही क्रिएट उसी के लिए होता है, राइट। हाँ, उस दिन का जिस दिन पेमेंट आया उस दिन का रेट वही बनना चाहिए। हाँ, पिनी बॉटल में पानी लेके आ रहे, पानी खत्म हुआ मेरा। ओके, सो जस्ट 2 मिनट, मुझे आने दो यार। ओके, सो ये यहाँ पे अभी आपको कुछ डाउट्स है प्री पेमेंट में, क्या कैसे ब्रेक जनरेट होंगे, क्या होगा रिजोल्यूशन कैसे, इसमें कुछ? ठीक है, ओके, ये मैं एफएक्स कन्वर्जन का तुम्हें इन डिटेल समझाऊंगा कॉर्पोरेट एक्शन के डिविडेंड का, जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे भी आएगा ये पॉइंट, डबल डबल आएंगे। ब्रेक्स तो हर जगह पर वैसे ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है, बट एक एक प्रोसेस एक जगह पर समझे तो वो अच्छा रहता है ना। अब हम बात करेंगे अपनी पोस्ट पेमेंट की, क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है अगर पोस्ट पेमेंट पेमेंट आज मैंने प्रोसेस कर दिया फिर भी मेरे सिस्टम में ब्रेक्स दिख रहे हैं। मैं एक डमी बना देता हूं कुछ, जो मुझे पेमेंट प्रोसेस करना है। चलो मैं पेमेंट प्रोसेस कर रहा हूं, मैं एक कस्टोडियन लेवल पे पेमेंट प्रोसेस कर रहा हूं, एंड मेरे लिए जो अकाउंट्स बन रहे, कस्टोडियन का एक अकाउंट होगा, करेक्ट, जहां पर मुझे इतना पैसा देना है, ये है मेरा जीबीपी। मैंने इवेंट क्रिएट कर दिया, राइट, मैंने इवेंट क्रिएट कर दिया। ये जो पोजीशंस है, पोजीशंस मेरी है okay, जो मेरे सिस्टम में पोजीशंस दिख रही है वो है लेट से 100 के अगेंस्ट मुझे जो पैसा देना है, जो फंड डिसबर्स करना है, इतना देना है। अब उसके अगेंस्ट में जो अकाउंट्स बनेंगे, लेट से ब्लैक रॉक का है, टेम्पल्टन का है, एनटी का है एक, और दूसरा मानो बीएनवाई का है। ये अकाउंट्स बन रहे, इनकी पोजीशंस है, इनकी पोजीशंस पे अपने को पैसा देना है
क्योंकि ये जो पैसा अपने को आया, लेट से जो होल्डिंग अपनी बनी थी वो थी, चलो HDFC की थी, HDFC के बॉन्ड्स थे या फिर जो भी तुम्हें पकड़ना है समझो, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड्स थे। HDFC ने तो कस्टोडियन को दे दिया कि भाई ये ले लो, 1,000 हमारे आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज है, उसके ऊपर इतना पेमेंट हो रहा है, ये ले लो। क्योंकि जब भी डिविडेंड, जब भी इंटरेस्ट पेमेंट या फिर अमाउंट जो भी डिस्बर्स होती है वो आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज के ऊपर होती है। जितनी आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज दिख रही है उसको जो तुम्हारा प्राइस बनेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो अमाउंट निकलेगी उतनी एक साथ अमाउंट इश्यूअर दे देगा। इश्यूअर के बिहाफ से जो भी एजेंट बैंक रहेगा वो दे देगा। अगर HDFC बैंक की बात हो, हाँ नहीं ये टोटल अमाउंट है समझो, अगर प्राइस निकालना है तो अपना ये रहेगा, प्राइस अपन निकालेंगे। ठीक है, तो अपने को 10 रुपए का कूपन आ रहा है समझो, ये बात समझ लो कि 10 रुपए का कूपन आ रहा है, मतलब 1,000 आने वाले हैं, सब मिलके 1,000। तो HDFC ने तो खुद ही बैंक है तो 1,000 प्रोसेस कर दिए, है ना। चलो प्राइस भी पता चल गई, लेट से ये प्राइस है, अज्यूम कर लो ये ट्रांजैक्शन करेंसी बन रही है। एंड बाकी तुम्हारा लेट से कि जो पेमेंट डेट है मानो आज की है, आज हम ये सिस्टम में प्रोसेस कर रहे हैं, आज हमने प्रोसेस, ऐसे एज्यूम कर लो कि आज हमने प्रोसेस कर दिया, आज हमने प्रोसेस कर दिया, तो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, अगर कस्टोडियन के लेवल पे काम करोगे तो जो तुम्हारे पास HDFC से पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगे उस पे तुम्हारी अमाउंट जो दिख रही है, जो पूरे डिमैट अकाउंट होल्डिंग की जो वैल्यू और क्वांटिटी मिलके दिख रही है वो पूरी मैच होनी चाहिए विथ सब डिटेल्स, टैक्सेबल है नहीं है, नॉन टैक्सेबल है नहीं है, क्या है, कितना पेमेंट है, प्राइस है, अमाउंट है, इट शुड बी मैच्ड एवरीथिंग। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अभी अभी तो ये कस्टोडियन की बात होगी, ठीक है, तुमने यहां पे हो, तुम यहां पे काम कर रहे हो, कस्टोडियन के लेवल पे काम कर रहे हो। तुमने क्या किया, HDFC से जो इंस्ट्रक्शंस आए वो देखा, वो मैच करने की कोशिश करी, मैच हो गए। मैच जैसे ही हुए तुम क्या करोगे, इसका पहले जैसे ब्लैक रॉक का कितना है, लेट से ब्लैक रॉक का 20 क्वांटिटी का है, ठीक है, इसका कितना है टेम्पल्टन का, लेट से टेम्पल्टन का 30 क्वांटिटी का है, इसका 30 का है, इसका 20 का है, ये 20 ऐसे क्वांटिटी का, यानी कि 100 क्वांटिटी का ये क्वांटिटी इतनी होल्ड कर रहे हैं, मतलब डिमैट अकाउंट में उनके, करेक्ट, हाँ इतने होल्ड कर रहे हैं, ये इनकी क्वांटिटी दिख रही है। अगर इतनी क्वांटिटी दिख रही है तो उनको जो हमारा प्राइस होगा, प्राइस कितना हुआ है अनाउंस्ड, लेट से 10 हुआ है ना, सो 10, हाँ 10 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 200 रुपए, ये 300, ये प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहां पर ये लोग बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर से लेकर के एंड ऑफ द क्वार्टर तक ये अक्रूएबल्स ऐसे करके मेंटेन करते हैं। मतलब ये कह रहे तुम्हें, जैसे कि अभी क्वार्टर की डेट अगर आज आ रही है, पेमेंट डेट आज आ रही है, आज के दिन तक इन लोगों की जो अक्रूअल अमाउंट्स थी यहां तक आके पहुंच गई, कौन सी, ये 200 300 रिच हो गई। यहां तक जैसे ये पेमेंट डेट को रिच हो जाती है तो इन लोगों के कॉल्स आना चालू हो जाएंगे आपको कि हेलो भानु, कैन यू प्लीज कंफर्म व्हेन यू गोना रिलीज द पेमेंट फॉर अस, we have a 20 quantity, price is this, we are expecting 200 GBP, can you please confirm when you gonna release the payment। क्योंकि इसके बाद इनके अक्रूवल्स जो डेट सेट होती है उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो इनके अक्रूवल्स एक्सीड्स होते हैं, जैसे कि उनको अकाउंटिंग के लिए बहुत दिक्कत आती है ज्यादा, फिर एक और, हाँ हाँ,
क्योंकि पूरे अकाउंट्स एक पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट के अकाउंट सेटअप रहते हैं ना ये, करेक्ट। हाँ, ये पीरियोडिक, जैसे अक्रूवल्स उन्होंने 1 तारीख से लेकर मैंने 90 डेज तक अक्रूवल्स कर दिया, ये कि 90 डेज के बाद एग्जैक्टली पेमेंट डेट हो, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में पेमेंट डेट तो फिक्स होता है। इस क्वार्टर में ये डेट पेमेंट डेट फिक्स होगा, उस क्वार्टर में वो डेट फिक्स होगा, उस डेट पे आना ही चाहिए, क्लोजिंग बिजनेस ऑफ द डे तक उसके पहले आना ही चाहिए। हाँ, अगर नहीं आता है, अगर तुमने मानो कि तुमने गड़बड़ी कर दी, तुमने ये गड़बड़ी यहां पे कर दी पेमेंट रिलीज करते समय, एंड ये कई बार ऐसे टेक्निकली होता है कि जैसे तुमको तो इनके अकाउंट पे पेमेंट करना था, इनका अकाउंट अलग अलग अकाउंट सेटअप रहेंगे, इसका 01 है मानो, इसका कुछ और है, हाँ, तो तुमने गलत इसे कर दिया कि इसको पेमेंट कम गया, इसको 200 की जगह सिर्फ 100 ही गया। अगर इसको 100 गया है तो पॉसिबिलिटी तुम्हारी ये बन रही है कि ये जितने भी डिफरेंट अकाउंट दिख रहे हैं ये इनके भी गलत गए। इनको एक तो इनको होगा कि एक ज्यादा जाएगा, या फिर इसको कम जाएगा, या फिर और ज्यादा जाएगा, या फिर इसको कम जाएगा। मतलब तुम्हारा जो इन्वेस्टिगेशन अभी बनेगा तो बहुत खतरनाक होगा ये चीज, क्योंकि तुमने एक गलती कर दी तो तुम्हें पूरे के पूरे जितने भी फंड्स के अकाउंट है वो अभी देखना है, रिकंसाइल करना है कि वो उनका क्या, ये फिर हमें डेटा एक्सपोर्ट में सॉरी एक्सेल में लेना पड़ेगा, पूरे फंड्स देखने पड़ेंगे, किसको मैंने कितना दिया वो एक एक करके तुम्हें रिकंसाइल करना पड़ेगा, एंड वो बाजू में निकालना पड़ेगा कि हाँ मैंने इसको अच्छे से दिया, इसको दिया, उसको दिया, एंड गलत अकाउंट निकालना पड़ेगा। उसको जब तुमने गलत कर दिया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा एंड फिर से उनको पे करना पड़ेगा। जिनको ज्यादा दिया मतलब क्या, रिवर्स करो नहीं। अभी इस केस में रिवर्स, मैं वो भी बताता हूं तुम्हें फंडा। इस केस में क्या हुआ ना कि तुमने एक को कम कर दिया तो दूसरे को ज्यादा गया, तो मतलब जिनको ज्यादा गया उनसे रिवर्स करो ना। पहले उनको क्रेडिट किया था, अभी उनके अकाउंट से जितना ज्यादा गया उतना डेबिट करो। मानो इसको 50 रुपए तुमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया था फर्स्ट केस में, वो अब डेबिट कर दो 50, ये बैलेंस हो जाएगा। तो मानो कि ये एक्शन हमारा सिस्टम में होता है, ऐसे हम देखे एक्चुअली मैनुअल एंट्रीज पुट करते हैं। एंट्री अकाउंट एंट्री जो बनेगी हमारी, टेम्पल्टन अकाउंट डेबिट टू, फिर मुझे पैसा कहां पे लेके जाना है, ब्लैक रॉक अकाउंट क्रेडिट। हाँ, क्योंकि उसको यहाँ पे मुझे, जैसे यहां से अगर मैंने 50 कम कर दी तो यहाँ पे मैं 50 बढ़ा रहा हूं। यहाँ पे पहले यहां से इसका गया था, मतलब डेबिट हुआ था, तो अब यहाँ पे क्रेडिट होगा। यहाँ पे 50 आएगा, ये पहले गया था अब आया, तो ये अपना बैलेंस, और 50 का तुम्हें गैप दिख रहा है। तो तुम देखो कि यहाँ पे अभी 2 अकाउंट, तुम्हारा एक अकाउंट तो अभी करेक्ट हो गया मानो। फिर तुमने दूसरा देखा, अरे भाई इसको 300 जाना चाहिए, उसको भी देखो कि उसका पैसा कहां पे गया वो देखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि उसका ज्यादा कहीं पे गया है तो मानो यहाँ पे अपन एक ऐसे लेते कि यहाँ पे इसको भी ज्यादा गया था, लेट से अज्यूम कर लो, तो उसके अकाउंट से भी सेम होगा कि पहले इसको अपन ने ज्यादा दिया था, अब उसके अकाउंट से रिवर्स कर दो, यहाँ पे फिर 200 हो जाएगा। फिर देख लेना तुम्हारा पूरा बैलेंस मैच हो रहा है, यहां से 300 कर दो। मैनुअली करना होता है ये सब, इसलिए बोलते कि ब्रेक रेजोल्यूशंस है। हमने वो इन्वेस्टिगेशन कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, सब हो गया, कॉन्फर्मेशन मिल गया हमें, एंड तब जाके हमने ये एक्शन कर ली, क्योंकि मैं वो सेम स्टेप्स नहीं दोहराना चाहता हूँ। बट वो जो इन्वेस्टिगेशन का फंडा हर एक के लिए सेम रहता है। सोर्स फाइंड आउट करो, क्या गलती करी वो देखो, उसके बाद ढूंढो कि भाई मुझे अभी एक्शन क्या करना है, उसे कंफर्म कराओ कि यही एक्शन करना है, कि कंफर्म हुआ एक्शन ले लो, एंड तब जाके तुम्हारा ये बैलेंस हो जाएगा। वो जितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना जाएगा। अगर तुम फंड लेवल पे काम करोगे तो वहां पर भी वही सेम दिखाई देगा। उनके सिस्टम में एक्रूवल्स 200 दिखाई दे रहे हैं, बट जो पैसा आने वाला है वो 50 दिखाई दे रहा है, तो वो लोग खुद 50 रुपीज वहां पे मतलब कम दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज्यादा आते हैं यार ये इश्यूज, क्योंकि पूरी प्रोसेस ही इसी के, जो पैसा मिलता है ना हमें, ज्यादा पैकेज जो मिलता है ना, इसी के लिए मिलता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो, ढूंढो। 3-3 4-4 अदर ब्रेक्स पेंडिंग दिखाई देते तुम्हें सिस्टम में। अगर ये समझो एजेड हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे ट्रेड्स भी होते रहते हैं ना,
तो वो ढूंढना, निकालना, अपना लॉजिक लगाना, फिर पैसा निकालना इतना इजी नहीं है। ये बहुत ज्यादा ब्रेक्स आते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि फिक्स्ड इनकम में ज्यादा ब्रेक्स नहीं दिखाई देते हैं इन कंपैरिजन विद दी कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शंस में बहुत ज्यादा ब्रेक्स होते हैं, क्योंकि बॉन्ड होल्डर जितने भी होते हैं उसका जो नंबर ऑफ बॉन्ड होल्डर्स कम ही होते हैं, बट शेयर होल्डर्स देखा जाए तो मिलियंस में होते हैं। नंबर ऑफ जब अकाउंट्स बढ़ते हैं तो ब्रेक भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पोस्ट पे अगर तुम कस्टोडियन लेवल पे काम करोगे तो वहां पर ब्रेक रेजोल्यूशन का स्ट्रेटेजी बनेगा, ये रहेगा। एंड इसी वजह से ब्रेक्स आते हैं। कई बार ऐसे होता है कि पेमेंट इसने ही मुझे कम भेजा है, मैंने रिकनसाइल नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, मैंने प्रोसेस कर दिया। अभी अभी किसने बोला प्रोसेस करने के लिए? यू शुड वेट, send a mail to the HDFC and let them confirm what is the price। अगर उन्होंने कहा कि ये बाद में प्राइस अमेंड हुआ था, तुमने गलत अपडेट करके रखा है, ये जो 10 था वो 10 नहीं है, वो 8 है, तो भाई फिर तुम्हें वो अमेंड कर, हाँ तुम्हें अमेंड करना पड़ेगा। वो कम्युनिकेशन तुम्हें जितने फंड्स है उनको भी भेजना पड़ेगा कि भाई देखो ये प्राइस लैटर ऑन अमेंड हुआ था, ये सोर्स है, डॉक्यूमेंट है, एचडीएफसी ने कंफर्म कर दिया, क्योंकि हम इसके हिसाब से पेमेंट प्रोसेस करने वाले। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये लोग तो 10 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये लोगों ने पहले से 10 अपने सिस्टम में अपडेट करके रखा है। ब्लैक रॉक ने, टेम्पलटन ने 10 करके रखा है। अगर तुमने उसको कम्युनिकेट कर दिया तो ये भी अपना सिस्टम अपडेट करेंगे, ये बोलेंगे हाँ ठीक है, आज के बाद 8% से पेमेंट आएगा, या फिर ₹8 8 GB जो भी वो पेमेंट आएगा, तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कई सारी ऐसी चीजें तुम्हें दिखाई देगी। तो हमें इसलिए इंश्योर करना होता है कि अगर कम्युनिकेशन कुछ आया था क्या, बाद में आया था क्या, पहले आया था क्या, रेट चेंज हुआ था क्या, क्वांटिटी चेंज हुई थी क्या, या फिर और कुछ हुआ था क्या, वो पूरी चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है, ट्रस्ट मी, वो पैसा जब एक बार, मैंने कहा ना कि अगर निकल जा रहा है, अटक जा रहा है, तो वापस नहीं आता है, पूरा जॉब खा जाएगा आपका, नहीं होता है। इसलिए जब भी पेमेंट प्रोसेसिंग में हम काम करते हैं, जब यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे प्रोसेसिंग में अगर हम काम कर रहे हैं, तो क्रिटिकल इसलिए बन जाती क्योंकि हमसे हाथ से एक बार पैसा निकल गया तो उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर वो। ठीक है, फंड लेवल का रिकॉन यही बनेगा कि तुम अपने कस्टोडियन से कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसी का रिकॉन करो, उसी के रिलेटेड ब्रेक देखो। कस्टोडियन लेवल पे पूरे फंड के लिए देखेगा, बट यहां पे तुम अपने अपने फंड के लिए देखो कि कस्टोडियन से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम्म। नहीं, यहां पे कैसे होता है ना कि अमेंडमेंट्स वगैरह होता क्या, अमेंडमेंट्स मतलब तुम ट्रेड टीम ही अपना काम अच्छे से करो। हाँ, इसमें अमेंडमेंट्स की बात क्या होती है ना कि अमेंडमेंट्स होगा जैसे कि जो डिविडेंड, सॉरी, जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलने वाला था उसका रेट चेंज हो गया, जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलने वाला था उसका रेट चेंज हो गया। ये हो सकता है कि इसमें जो पहले जो था 10 बुक था, बाद में 8 हुआ, तो उसका कम्युनिकेशन पहले तो एचडीएफसी रिलीज करता है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, डिसीजन क्यों ले रहे हैं, ये मेल के थ्रू कम्युनिकेशन आता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि पूरे के पूरे मेल ट्रेस करो, कि जो स्पेशली कस्टोडियन से आते हैं, जो एक्सटर्नल काउंटर पार्टी से आते हैं, ट्रेस इट। क्योंकि अगर आपने मानो मेल मिस हो गया, आपने देखा नहीं, एंड स्टिल आप यू एक्सपेक्टिंग कि मैं हम 10 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट जब इन्वेस्टिगेशन करने बैठे तो मेल निकल गया कि हाँ ये तो मेल आया था। अरे ये पूरा कम्युनिकेशन मेल के थ्रू चलता है। कई कई जगह पर कुछ और सिस्टम्स भी उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म बना लिए, वहां पर नोटिस आते हैं, वहां पर कम्युनिकेशन आता रहता है, अलर्ट्स आते रहते हैं, वो देखो हर एक अलर्ट ट्रेस करो, देखो अपडेट करो, देखो अपडेट करो ऐसे। बट ये फिक्स इनकम में जो कम्युनिकेशन आएगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जैसे होता है, इश्यूअर को कम्युनिकेट करना है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार कम्युनिकेट करेगा कस्टोडियन, कस्टोडियन कम्युनिकेट करेगा उसके काउंटर पार्ट्स, कि जितने उसके पास अकाउंट्स है जिनके है वो उनको कम्युनिकेट करे।
जितने भी लैटर अमेंडमेंट्स रहेंगे, जो भी रहेगा, कुछ भी रहने दो, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द काउंटर पार्ट्स, क्योंकि every entity they maintain their accounting at their level. If you don't communicate to them, their accounting and their cash flows and their accruals, everything will be impacted. है ना? तो यहां पर भी पोस्ट पेमेंट के बाद जो ब्रेक्स बनेंगे यही है, कैश ब्रेक एंड स्टॉक ब्रेक। बट यहाँ पे स्टॉक्स ब्रेक का कुछ ज्यादा होगा नहीं, ठीक है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अगर प्री पेमेंट स्टेज में अगर क्वांटिटी वगैरह सब गलत सब सही कर दिया तो यहाँ पे स्टॉक ब्रेक्स तो आएगा नहीं, है ना? तो यहाँ पे मेजरली तुम्हें दिखेंगे कैश ब्रेक्स। कैश ब्रेक्स क्यों देखेंगे? क्योंकि अगर हमने गलत अकाउंट को पे कर दिया, टू पे द डिविडेंड इनकरेक्ट अकाउंट। यहां पर हमने देखा ना कि हमने ब्लैक रॉक का टेम्पल्टन को टेम्पल्टन का, एनटी को एनटी का, बेनवा का किसी और को पे कर दिया, वो होता है। तो उस केस में ब्रेक तुम्हें दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक के स्टेटमेंट्स ओपन ही दिखेंगे ना, क्योंकि मैच ऐसे दिखाई देगा कि तुमने कुछ पे ही नहीं किया। क्योंकि सिस्टम एक जो ऐसे बना है ना, वो हमेशा याद रखना, सिस्टम को एक फिक्स्ड फीड दिए गए हैं, ट्रेड डेट, क्वांटिटी, बैंक अकाउंट, बिग कोड, पूरा ऐसे फिक्स दिया गया है। जैसे अगर लेजर में वो फिक्स है, स्टेटमेंट के उसके अगेंस्ट में वो फिक्स अगर नहीं आता है, उसको आईडीबी को ट्रेड आईडी अगर वो मैच नहीं हो रहा है, तो सिस्टम में ब्रेक पेंडिंग दिखेगा, मैच कभी नहीं होगा। मैच नहीं हुआ मतलब उसको पे नहीं हुआ है। तो ये हर एक प्रोसेस में दिखाई देगा। वो सिस्टम्स ऐसे फीड्स, फिक्स फीड्स है, फीड्स में डेटा वो फिक्स्ड होता है, वो अगर एक दूसरे के अगेंस्ट में मैच नहीं हो रहा है तो वो नहीं उठाएगा, फिर वो ऐसा का वैसा ही पेंडिंग दिखाई देगा सिस्टम में। पेंडिंग का मतलब है कि तुमने कुछ एक्शन ही नहीं करी है, एंड वो इसका मतलब ये भी होता है कि स्टिल दे आर एक्सपेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम यू। सिस्टम में ऑटोमेटिकली मैच कब होता है? कि जब तुम्हारा डेबिट वर्सेस क्रेडिट 200 रुपए आया, 200 एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना मैच होना चाहिए, तब वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है, मतलब उनका सही से पैसा गया। उनका अगर ब्रेक दिख रहा है मतलब उनको नहीं गया, किसी ना किसी एक को कम गया है या फिर ज्यादा गया है, ये पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, तो रिकॉन टीम कई जगह पे, मैंने कहा कि कई जगह पर रिकॉन टीम होती है तो वो करते हैं, कई जगह पर नहीं होती तो भाई तुमने इवेंट प्रोसेस किया तो तुम्हें ही करना है। वो डिपेंड करेगा कि फ्रंट टू एंड मॉडल कौन सा है बिजनेस का, वो हर जगह पर अलग अलग अपने अपने हिसाब से करते हैं भी, उसके ऊपर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बट मैं दोनों, हाँ वो दोनों में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप अगर कहीं ज्वाइन भी करते तो आपको लगे अरे शिवराज ने तो बताया नहीं था, मुझे तो यही पता हो, है ना? या फिर हाँ, तो इसलिए मैं जब भी बताना होता है तो पूरी हर एक लेवल की चीजें बता देता हूँ कि कस्टोडियन में क्या हो रहा है, मिडिल ऑफिस में क्या हो रहा है, बैक ऑफिस में मैं क्या कर रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ, वो सब मैं एक ही साथ में डिस्कस करता रहता हूँ, क्योंकि हर जगह पर सेम ही वर्क है, कहीं पे भी जाओ, है ना? कहीं पे भी जाओ सेम टाइप का वर्क है। ऐसे कुछ नहीं कि वहां पे कस्टोडियन में अलग कुछ कर रहे हैं, वो भी प्रोसेस करते हैं। हेज फंड लेवल पे भी प्रोसेस होता है, हेज फंड की भी डिविडेंड टीम होती है, वो उनके इन्वेस्टर के अकाउंट को एलोकेट करती है डिविडेंड, वो भी तो प्रोसेसिंग ही है ना? तो हर जगह पर वो प्रोसेसिंग होता है, ऐसे नहीं कि वो उनकी लेवल पे हो रहा है, कस्टोडियन लेवल पे हो रहा है, सब जगह पर प्रोसेसिंग होता है। अपने अपने फंड लेवल पे होता है, डील लेवल पे होता है, कस्टोडियन लेवल पे हो रहा है, बैंक्स लेवल के हो रहा है, एजेंट बैंक्स लेवल पे हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इनकरेक्ट हमने पे कर दिया तो होगा क्रॉस करेंसी में अगर पेमेंट आता है, हाँ ब्रेक होएगा, बट आने अगर पेमेंट, इफ यू हैव रिसीव्ड पेमेंट इन अ डिफरेंट करेंसी, इन दैट केस यू नीड टू परफॉर्म एफएक्स एक्टिविटी। मतलब ये होता है कि तुमको जाके स्पॉट रेट बुक करना है। आज जब मुझे अभी पेमेंट आया तो अभी का इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट बुक करो, मतलब जो जो करेंसी आया उसको कन्वर्ट करो इमीडिएटली जाके। देखो जैसे अभी तुम्हें जीबीपी 100 चाहिए, यूएसडी कुछ आया 15 आया मानो, ठीक है, उस 15, देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें जीबीपी चाहिए
पेमेंट आया यूएसडी में, तुम यूएसडी में प्रोसेस नहीं कर सकते, वो सिस्टम में मैच नहीं होगा। हाँ, तो तुम क्या करो, एफएक्स कन्वर्जन करो उसका, 15 को कन्वर्ट इनटू, जो भी कन्वर्जन आएगा वो होना चाहिए तुम्हारा 10 एटलीस्ट होना चाहिए। उसके ऊपर जा रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है भाई ले लो, या फिर उसका इंक्वायरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे 10 जीबीपी चाहिए। और अगर उससे कम भी आ रहा है तो वो लिमिट देखनी पड़ेगी कि कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट मुझे दी गई है। अगर एफएक्स कन्वर्जन के थ्रू अगर कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट आ रहा है तो कितने शॉर्ट तक हम बेयर करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें होती है, वो देखना है। ये चैलेंजिंग टास्क होता है क्रॉस करेंसी का, क्योंकि हमें फिर वो कंफर्म करो, एफएक्स जाके मार्केट से बुक करो, कन्वर्जन करो। अभी अपने अपने सिस्टम में इतने गंदे गंदे फंक्शंस बनाए गए हैं कि वो हर एक की अलग मतलब स्टोरी है, हर एक एप्लीकेशन की अपने अपने। जहां पर मैं करता था काम, वहां पे तो हम एक्सेल में करते थे एंड वो भेज देते थे क्लाइंट को। जहां पर कई और जगह पर मैंने देखा कि वो सिस्टम में ही करते हैं, अपने सिस्टम में ही करो जाके, उनका सिस्टम मतलब मार्केट से लिंक्ड है, लाइव है, सो बुक करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहां पर बनेगी। दूसरा ब्रेक्स आपका वही राइट ऑफ का होता है। राइट ऑफ का मतलब है कि तुम्हारी जो अमाउंट थी, जैसे यहां पर देखो, हमें जो पेमेंट आया, जो पेमेंट रहेगा, लेट्स से कि 10 जीबीपी का है, हमें 10 जीबीपी का ही मिला, सॉरी 10 नहीं 8 जीबीपी का मिला, बट हमारे पास जो लिमिट दी गई है वो लिमिट है अप टू 5 जीबीपी। अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है तो तुम प्रोसेस कर सकते हो, तुम्हें उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू प्रोसेस, एंड जितना भी डिफरेंस हो मतलब बचेगा वहां पे, क्योंकि मैच नहीं होगी ना दोनों ट्रांजैक्शन, सिस्टम में मैच होनी चाहिए, इवेंचुअली मैच नहीं होते हैं, तो उसके लिए जो डिफरेंस बचेगा उसके अगेंस्ट तुम राइट ऑफ अकाउंट पोस्ट कर दो, राइट। तो ये इसलिए राइट ऑफ अकाउंट पिक्चर में आता है कि जो जहां पर थ्रेशोल्ड की लिमिट है उसको मिटिगेट या फिर ऑफसेट करने के लिए तुम्हारा राइट ऑफ अकाउंट काम करेगा। अब रही बात सस्पेंस अकाउंट की, सस्पेंस क्यों है? सस्पेंस अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैंने ये थोड़ा सा इन शॉर्ट मीनिंग समझाया था आपको कि व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट ये एलोकेट सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ये एलोकेट करते हैं इनको, ठीक है। सो दे डू एलोकेट सस्पेंस अकाउंट टू ईच बैंक और ब्रोकर और कस्टोडियंस। ये क्यों है? ईच फंड्स, ये क्यों है? क्योंकि लॉजिक सिंपल है, तुम एनटी का पैसा टेम्पलटन को नहीं दे सकते हो, टेम्पलटन का पैसा ब्लैक रॉक को नहीं दे सकते। दिस इज अ वायलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस और पेमेंट ट्रांजैक्शन, एंड वही पैसा इवन यू कैन नॉट फ्रीली पार्क इन दैट एंटिटीज अकाउंट एज वेल। अगर तुम्हारा कस्टोडियन सीटी है, सीटी के अकाउंट में भी तुम पैसा जो आएगा एक्स्ट्रा तो वो पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, दो अकाउंट तुम्हें दिखाई देंगे। एक होता है फर्म अकाउंट। फर्म अकाउंट मतलब क्या? वो सीटी का अकाउंट है खुद का, इसमें सीटी खुद भी कुछ भी कर सकता है, उसका बिजनेस कर सकता है, लोगों के सैलरीज पे कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दूसरा होगा सेफ कीप अकाउंट। एंड व्हाई द सेफ कीप अकाउंट? बिकॉज ये जो अकाउंट है पूरे क्लाइंट के अकाउंट है। ये स्ट्रक्चर तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये ज्ञान चाहिए होता है कि वो समझने के लिए, स्ट्रक्चर समझने के लिए। बट मैं जब बैंक में काम करता था तो मुझे तब पता चला कि काम कैसे कर रहा है ये अपना एचडीएफसी कस्टमर का भी पैसा मेंटेन कर रहा है और खुद का भी कैसे कर रहा होगा, फिर ये कैसे चल रहा है, तब मुझे पता चला। तो वहां पे प्रोविजन है कि एक फर्म अकाउंट होता है, दूसरा सेफ कीप अकाउंट होता है। मतलब अगर मैंने किसी का डिपॉजिट लिया तो वो पूरा सेफ कीप अकाउंट के अंडर ही रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि दैट इज नॉट अ बैंक्स मनी, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो यहां पे तुम्हें अकाउंट्स दिखेंगे, ब्लैक रॉक का अकाउंट दिखेगा, यहां पे एनटी का अकाउंट दिखेगा, टेम्पलटन का अकाउंट दिखेगा, एंड यहां पे तुम्हें और बीएनवाई का अकाउंट दिखेगा। सो सिंपल सा लॉजिक है। अगर सेफ कीप अकाउंट में
तुम्हारे जो पैसा सेफ की अकाउंट मतलब एक सेपरेट बैंक अकाउंट है, पूल के जैसा अकाउंट है, वहां पे अगर 1000 रिसीव्ड हुआ है, एचडीएफसी से हुआ है, एचडीएफसी से अगर हुआ है क्योंकि एचडीएफसी ने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो वो पैसा इनको सही से जाना चाहिए, जितना जिसका है उतना जाना चाहिए। अगर मानो इसको इतना गया, इसको इतना गया, इसको इतना गया, कितना हो रहा है 600 कुछ 700 कुछ हो रहा है, तो 300 यहां पे स्टिल दिखेगा। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है कौन? ऑडिटर, रेगुलेटर, ऑडिटर, ये ऑब्जेक्शन लेते, व्हाई देयर इज अ स्टिल फंड इज पेंडिंग, व्हाई डिडंट यू टेक एनी एक्शन ऑन इट, वेयर इज द इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिसीव्ड एक्स्ट्रा मनी, व्हाई डोंट यू इन्फॉर्म, एंड दिस कम्स अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल। मतलब क्या हुआ कि तुमको जो पैसा मिला तुमने उसका एक्शन लेने की कोशिश भी नहीं करी, अगर तुम नहीं करोगे तो इसलिए वो लीगल एक्शन भी कहा जाता है। तो हमारा काम ये बनता है कि भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है, जिसका पैसा है उसको दे दो, इमीडिएटली दे दो, है ना। तो ये होता है ब्रेक रेजोल्यूशन, इसलिए हम करते हैं ताकि वो पूरा पैसा कहीं ना कहीं पे सेफ अकाउंट में पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पे किसी और को एक्स्ट्रा गया है, कहीं ना कहीं पे एंटिटी के अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर ये गलती से पैसा फर्म के अकाउंट पे आ गया 300, तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, वहां पे ऑडिट बैठता है, वहां पे सेंट्रल बैंक आके कंट्रोल ले लेगा, बहुत सारी चीजें पिक्चर में आएगी। इसलिए ये लोग कहते, हाँ, क्लाइंट का पैसा फर्म के अकाउंट पे आना नहीं चाहिए, अगर आ रहा है तो उसका रीजन होना चाहिए, रीजन वैलिड होना चाहिए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एंड जिस पर्पज के लिए है वही पर्पज के लिए वो इन्वेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे बनेगी। तो मतलब तुम्हें अब समझ में आया होगा कि हम ब्रेक रिजॉल्व करने की कोशिश क्यों करते हैं, राइट? क्योंकि ये पूरा पैसे, हाँ, तो क्योंकि, हाँ, क्योंकि वो पूरा पैसा जो है अपना पैसा नहीं है, तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ये फर्म अकाउंट, सेफ कीप अकाउंट डिफाइंड होते हैं। अगर तुम जब भी ज्वाइन करोगे किसी टीम को, ये पूछ लेना भी सेफ से ये फर्म का अकाउंट कौन सा है, सेफ कीप अकाउंट कौन सा है, क्लाइंट के अकाउंट कौन सा है, ये पूरे बताए, वो तुम्हें दिखाई देंगे, या फिर बता देंगे हाँ ये है भाई, चलो ये अकाउंट्स है, मेक श्योर कि इस पे कुछ मत करना, मेक श्योर कि इसको कुछ मत करना, इस पे बैलेंस नहीं होना चाहिए। एंड अब मैंने जैसे कहा कि सस्पेंस अकाउंट बीच में क्यों आया, देखो जो ये 300 रुपीज बचते हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन जारी है हमारा, ठीक है, हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट लग रहा है कि वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि कॉन्फर्मेशन आना बाकी है, काउंटर पार्टी सामने से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो हम इसको अपने सेफ कीप अकाउंट में रख नहीं सकते। सो फॉर अ टाइम बीइंग व्हाट वी डू, वी ट्रांसफर दिस मनी टू द सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हाँ, यहां पे हम जीरो करके रखेंगे, वो पैसा सस्पेंस अकाउंट पे लेके जाएंगे, वहां पे क्रेडिट करेंगे, सिस्टम में एक्चुअली हम वही अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, जब भी हमें लगा कि उसका कॉन्फर्मेशन आया हाँ ये एनटी का पैसा ब्लैक रॉक का है, फिर उसके सस्पेंस अकाउंट के अगेंस्ट में इन सबको हम फिर से जितना पैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे उतना दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये हुआ तुम्हारा ब्रेक रेजोल्यूशन का, कि ऐसे हम ब्रेक रिजॉल्व करते हैं। एंड दूसरी एक बात है सस्पेंस अकाउंट की, कि व्हाई सस्पेंस अकाउंट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम एजेंट बैंक्स दे process the payment through wire transactions. Wire transaction, it means like a Google payment, right? Google, it's a wire facility, so that we do transfer on a mobile number, so that wire will receive to that particular bank and bank will accept against that the instructions, and it will match and it will transfer that payment to your account, right? So that's how wire payment works. But in a most of the cases, when the agent bank process the payment, they process the payment on a suspense account of that particular entity. क्योंकि पेमेंट आइडियली आना चाहिए, अगर ब्लैक रॉक का अकाउंट है तो ब्लैक रॉक को पेमेंट आना चाहिए, क्योंकि इनके अकाउंट सेटअप है ना कस्टोडियन के पास, तो उन्होंने उसी अकाउंट पे पेमेंट करना चाहिए, बट इंस्टेड दैट वो पेमेंट आ गया सस्पेंस अकाउंट पे, क्योंकि ब्लैक रॉक, टेम्पल्टन, इनके हर एक के सस्पेंस अकाउंट उनके साथ होते हैं, सो उस पे पेमेंट आ गया। दिक्कत वहां पे है, अगर पेमेंट सस्पेंस अकाउंट पे आ गया तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर दिन सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी चेक करते रहते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अगर उसमें कुछ एडिशन या फिर गया है यहां से तो देखते हैं कि भी क्यों गया है,
क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ब्लैक रॉक का पेमेंट आने वाला था वो सस्पेंस पे आ गया। अगर वो पेमेंट तुमने नहीं देखा तो यहाँ पे स्टिल तुम पेमेंट प्रोसेस नहीं कर पाओगे, तुम फिर चेंज करते रह जाओगे कस्टोडियन को कि भाई पेमेंट नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, बट यू डिडंट चेक इन योर सस्पेंस अकाउंट, यू शुड हैव चेक्ड इट। अगर वो चेक करते तो सस्पेंस अकाउंट के अंडर जिस जिस अकाउंट से पेमेंट आया वो अकाउंट, कस्टोडियन की डिटेल सब मेंशन होती है, क्योंकि हर एक बैंक के पास अपना बैंक अकाउंट नंबर है, उसको बिग कोड कहते हैं, आइजिन कहते हैं, है ना। ट्रेड डेट, क्वांटिटी, जितना पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो, जीबीपी स्टेटस, वो सब दिखता है। तो मैच करो, वहां से सस्पेंस से रिवर्स करो एंड ब्लैक रॉक के अकाउंट पे लेके जाओ, उसको पे कर दो। या फिर ब्लैक रॉक भी वही करेगा इंडिविजुअल लेवल पे, अरे हाँ एजेंट ने तो पेमेंट कर दिया बट वो सस्पेंस पे चला गया, तो उसको अनअप्लाइड फंड बोलते हैं, तो अनअप्लाइड को अप्लाइड कर दो, प्रोसेस कर दो। ठीक है, तो ये इन्वेस्ट, वही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो चैलेंजेस हो सकते हैं, वो चेक पेमेंट आ रहा है। चेक पेमेंट जब आएगा, अगर 200 जीबीबी का चेक पेमेंट है तो उसका फीस भी लगेगा एंड वो क्लियर होने के लिए समय लेता है। मानो ये 10 जीबीपी का फीस लगा है तो तुम्हें सिर्फ 190 ही आएगा। अभी तो 10 का शॉर्ट जो आएगा वो कहां से दोगे, कौन से जेब से डालोगे उसमें, तो हम कहीं से नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे कि भाई देखो, हमें उससे लेना देना नहीं है, विल एडजस्ट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, हम जेब से नहीं देंगे, क्योंकि वो आप जाके इश्यूर को झगड़ा करो कि उन्होंने चेक से पेमेंट दिया है, चेक फीस तो लगेगा। जो बैंक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो तो फ्री में सर्विस नहीं देगा ना। तो वो पूरे एक्सेप्शंस के अंडर आते हैं। जब भी एक्सेप्शंस इसलिए आते हैं क्योंकि चेक पेमेंट से दे रहा है तो भी किसी न किसी को इसकी फीस बेयर करनी पड़ेगी। फिर हम क्या करते हैं कि हम 200 रुपए 200 जीबीपी जहां पर 200 जीबीपी दैट वो एक्सपेक्टिंग, तो उसको हम ब्लैक रॉक को ही 190 जीबीपी कर देंगे। तो अब तुम्हारा मैच कर देंगे, मतलब कैसे कर देंगे कि वो एडजस्ट करना होता है, सिस्टम में फंक्शंस होते हैं वैसे, वो टैब्स होते कि जहां पर एडिट कर दो जाके एंड सेव कर दो। पोजिशंस ऐड, हाँ पोजिशंस, तुम क्या, पोजिशंस एडिशन होता है, एडिशन और रिमूवल होता है वो प्रोसेस। तो तुम क्या कर दो कि उसमें पेमेंट साइड पे रेट एडजस्ट कर दो। अगर पहले रेट अगर 200 को अगर तुम करते तो 10 का कुछ होता है, अगर मैं 190 के हिसाब से करूं तो तुम्हारा रेट कितना जाएगा, 9.5। तो ये नया रेट अपडेट कर दो उस पोजीशन के लिए, खत्म, ब्लैक रॉक के लिए, उसका पेमेंट मैच हो जाएगा। एडजस्टमेंट मतलब यही है, क्योंकि अगर तुमने 10 अपडेट कर दिया तो वो पेमेंट ज्यादा दिखाई देगा, बट हमें एक्चुअली जो चेक फीस लगा हुआ है उसकी वजह से, कई जगह पर ये भी मैंने फंक्शंस देखा है कि वो क्या करते हैं ना कि चेक फीस जितनी आई ना उसका रेशो अपडेट कर देते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, ये देखो, ये फीस है तुम्हारी, ये फीस सिस्टम में अपडेट करो एंड ये एज इट इज 10 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, ये सिस्टम अपने आप कर लेगा, फिर खत्म, ये अपने आप हो जाएगा। फिर सिस्टम क्या करेगा कि वो पूरा टोटल मैच होना चाहिए ना, तब तुम्हारा पेंडिंग ब्रेक मैच हो जाएगा। बट रेस्ट उसमें जो बाइफर्फिकेशन है वो उसके पास तुम्हारा जो बैकअप है, सब चीजें सिस्टम में रेट अपडेट कर दो, खत्म। ठीक है, तो ये पॉसिबल सिनारियोज है, ये रिपीटेटिव होंगे, बट वो वहां पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा डिविडेंड में, क्योंकि यही सब मैं बताऊंगा, लेकिन ब्रेक किस टाइप का होता है, क्या होता है जब कॉर्पोरेट एक्शंस की, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम कॉर्पोरेट एक्शंस के ब्रेक्स वगैरह, कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर वो स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अपना ब्रेक रेजोल्यूशन के साथ फिक्स्ड इनकम प्रोसेसिंग वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ये इतने पॉसिबल ब्रेक्स है, उसके अलावा भी कई सारे ब्रेक्स तुम्हें दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो ब्रेक्स दो ही कैटेगरी के होते हैं, एक तो कैश ब्रेक है, एक तो स्टॉक ब्रेक है। उसके अलावा टैक्स ब्रेक होगा, रिक्लेम होगा, पोजीशन ब्रेक होगा, क्वांटिटी, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम तुम्हें दिखाई देंगे। बट जो हमारा रेजोल्यूशन का स्ट्रेटेजी रहेगा वही रहेगा। हमें दिमाग में हमेशा रखना है कि भाई किसी ने किसी को ज्यादा गया है, किसी ने किसी को कम गया हुआ है, तो दैट वी नीड टू फाइंड आउट एंड आइडेंटिफाई एंड टू प्रोसेस और रिवर्स इट करेक्टली टू द करेक्ट अकाउंट। हमारा हमारा सैलरी किसी और को गया तो हम सहन कर पाते, भी झगड़ा कर देते, भी क्यों ऐसा। आपका सैलरी मुझे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, तो नहीं होगा। तो इसलिए पैसा उनका इन्वेस्टर का है, तो पैसा पैसा है। ठीक है।